in your current state, on giving the same input symbol, you can transition to more than one next state, which is your NFA. But in case of your DFA, it says no, not only the information about my current state, but along with the current state, what input symbol I am feeding to my current state, that is going to decide that which will be my next state. Okay, so that means I'm definite about the transition, that on my current state, whatever symbol I have applied, input symbol I have applied, depending on that, which is going to be my next state, that will be decided. Okay, so both these are factors for deciding about your transition details. So your NFA can be constructed from DFAs using epsilon transitions. So that is called NFA with epsilon transitions. So as I told that NFA is more flexible because it allows you to have epsilon transitions in it, and you can have any number of epsilon transitions present in your NFA. But in your DFA, it is more strict than your NFA because it doesn't allow any kind of epsilon transitions. We have also learned about this rules about your regular expression and regular languages, that if I write union, so that means basically I'm talking about the parallel connection. If I'm writing the star, that means I'm including all the input symbol, including epsilon or null input symbol in that particular set. So that is known as a key enclosure. Okay, so these are the diagrammatic representation of those rules which I just told you, that union when you are opting, so that means you will go ahead with the parallel movement or parallel transition from a current state to its next state. So either the way M1 is following, either by that way you can reach to your next state, or by the way M2 is following, by that way also you can reach to your next state from your current state. Okay, so this M1 and M2 are connected to a initial state, and they are saying that alternative paths are available for movement from your current state to the next state. Either you can go via path M1 or you can go via path M2. So you will represent, when you are writing such kind of language, so you are representing it by rule that L, which is supporting the input symbol M1, language which is supporting the input symbol M1, union language which is supporting the इनपुट सिंबल M2. सो वाई लैंग्वेज, बिकॉज जब हम लोग कोई लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो भाषा सीखने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और वर्ड सीखने के लिए हमें अल्फाबेट्स जानने की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम अल्फाबेट्स को कलेक्ट करके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को कलेक्ट करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस के जरिए हम अपने विचारों को हम दूसरे एंड तक पहुंचाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप सोचो कि जब हम लोग लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं, सो लैंग्वेज इज नथिंग बट मेड ऑफ सिंपल छोटे छोटे सिंबल्स, not symbols, we will say that as a input string, and these input strings are again made up of some combination of इनपुट सिंबल्स, ए बी स्टार हुआ या फिर ए ऑब्लिक बी हुआ, जो भी आप इनपुट सिंबल, या फिर 0 1 का कोई कॉम्बिनेशन से आप अपना इनपुट स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। सो दिस इनपुट स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट योर वर्ड्स। हाँ, तो इन इनपुट स्ट्रिंग से कलेक्शन को जब आप एक डायग्रामेटिक व्यू में शो करते हो, सो इट मे बिकम एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, मे बिकम एन एक्सप्रेशन फॉर यू। ओके, सो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम LM स्टार की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट LM स्टार, सो LM स्टार विल लुक कि एनी ऑकरेंस ऑफ M इज वेलकम इन दिस काइंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स, single occurrence, double occurrence, triple occurrence, and so on. So that is why you have kept one edge from your current state via some lambda or via some epsilon transition. You have connected to a intermediate state, and from there you are going M or giving M symbol, and but this you are following through a loop. Okay, so why this loop is given here? Because any occurrence of M can come. So whenever you will make a state transition from your current state to goal state or next state, you will
always follow the occurrence of m. So the more and more time you will loop back here, नहीं so निगा that निगा means नहीं you are निगा निगा basically नहीं. considering that many occurrence of m is हेलो happening in your input string. हेलो. Okay, so m square अगर करना पड़े तो आप 2 बार इस पाथ पे ट्रैवर्स करोगे बिकॉज इट्स अ लूप. ओके, अगर 3 बार अगर आप ट्रैवर्स करते हो तो इसका मतलब आपके इनपुट स्ट्रिंग में there are 3 occurrence of m. But here you have to keep a provision that null symbol can also occur. मतलब without taking any input symbol also directly you can reach to from your current state to final state you can reach via taking epsilon symbol, because lm star का मतलब ही है कि it is taking null string also in its set. whatever input string का आप सेट बना रहे हो उस सेट में वो null string को भी as a one member वो consider कर रहा है. So that is why this key enclosures includes null symbol also as a set member. Okay. अच्छा, अगर यही चीज अगर आप सीरीज करना चाहते हो, मतलब यू आर फॉलोइंग सर्टेन ऑर्डर दैट m1 फॉलोड बाय m2, सो m1 फॉलोड बाय m2 इज नॉट इक्वल टू m2 फॉलोड बाय m1. ओके, सो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑर्डरिंग यू आर फॉलोइंग. हाँ, कि पहले m जो है वो प्रेसिडेड रहेगा, उसके बाद उसके पोस्ट m2 विल बी प्रेजेंट. ओके, लाइक आई सेड यू कि ab, सो ab का अगर स्टार अगर करते हो, सो ईच टाइम इट विल गो a विल बी एट फर्स्ट फॉलोड बाय b. ओके, सो जब भी ab के मल्टीपल ऑकरेंस आएंगे, सो ab नेवर इट विल बी ab उसके बाद ba then again ab then ba, ऐसा नहीं हो सकता because these are not commutative. Okay, so this kinds of ordering is normally we treat using a series connection. तो इसमें क्या होगा कि पहले आप पहला जो सिंबल है उसको आप टेक केयर करते हो और उसके साथ ही सीरीज में नेक्स्ट सिंबल को आप टेक केयर करते हो. और अगर उसको उसमें भी आपको लूप चाहिए, सो यू कैन मेक अ लूप बैक सो दैट इसी ऑकरेंस को आप बार बार दोहराते रहो. ओके, तो these are some of the diagrammatic view I have already discussed. Now let's talk about the differences between these two types of automation system. So in your non-deterministic finite automata or NFA, there is an equivalent deterministic automata that we know, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कहा कि NFA जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. जहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, you add a edge between your current state and next state, और उस एज के ऊपर आप एप्सिलॉन लिख दो. So that means they will be connected. जैसे कि आपने प्रीवियस केस में भी देखा कि जहां पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, you have kept lambda, no? So this lambda is basically is epsilon here. Okay, so there is no an input symbol called lambda, so that means it is a null symbol which is responsible for doing this state transition. Okay, so जहां जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप एक एज ऐड कर दे रहे हो और उस एज के ऊपर लैम्डा लिख दे रहे हो या फिर एप्सिलॉन लिख दे रहे हो. So this is only allowed in case of your NFA, not in case of your DFA. ओके, सो मैंने अभी कहा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हमारे पास बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं. ओके, लेकिन ये भी सही बात है कि हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा का एक जरूर इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा हम बना सकते हैं. सो दैट इज वेयर वी वेर डिस्कसिंग कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम NFA system to a DFA system. Okay. Now, finite acceptors are equivalent if and only if they both accept the same language. So, अगर कभी भी हमें दो डिफरेंट लैंग्वेज दे दिया गया, one is following M1 string और another is following M2 string. So, ये दोनों तभी इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ये दो लैंग्वेज तभी इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर हमने देखा कि बोथ आर एक्सेप्टिंग द सेम इनपुट स्ट्रिंग्स. मतलब सेम इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि जो इनपुट स्ट्रिंग या फिर जो सेट ऑफ इनपुट्स आपके M1 में रखा गया है, अगर मैं उसे M2 सिस्टम में फीड करूं तो वहां पे हमने देखा कि इजीली वो उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है. मतलब आपके इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए M2 सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और वाइस वर्सा. मतलब अगर मैं देखूं कि M2 सेट में जो इनपुट स्ट्रिंग्स है उनको अगर मैं M1 सिस्टम में फीड करूं तो M1 सिस्टम में जो इनिशियल स्टेट था वहां से फाइनल स्टेट में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है. सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन योर M2 सेट. ओके, सो अगर ऐसा कोई अगर आप मतलब दो इनपुट सेट आपको मिलता है,
और उन इनपुट सेट से दो लैंग्वेजेस आप बनाते हो और दोनों का एक्सेप्टेंस लेवल अगर सेम होता है, एक दूसरे के इनपुट स्ट्रिंग को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे, सो देन वी कैन डिक्लेयर दैट दीज टू languages are equivalent in nature. Okay. So in DFA, the label resultant state as a set of states. So यहाँ तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग NFA हो या फिर DFA हो, हम लोग एक 5 टपल एक मेंटेन करते हैं। कोई भी ग्रामर को हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं, सो हम लोग 5 टपल मेंटेन करते हैं। उनमें से एक टपल होता है कि कैपिटल Q, which actually denotes that how many number of states are there present in that particular grammar. Okay. तो यहाँ पे हम लोग जो Q जो एक सेट बनाते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, बेसिकली दैट विल कीप द number of states involved in your DFA or in your NFA system. Okay. So in case of your DFA, you will be having exactly 2 to the power Q states. Exactly. ठीक है. So ये जो exactly हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? NFA में मैंने अभी कहा कि आपके पास मान लो कि 5 आपके पास स्टेट्स है, तो 5 स्टेट्स के अलावा भी आप बहुत सारा, मतलब एक दूसरे के साथ अब जब कनेक्ट कर रहे हो कोई एजेस से, तो उसके अलावा भी आप बहुत सारा एप्सिलॉन एजेस ऐड कर सकते हो और उस एप्सिलॉन एजेस के जरिए कोई भी ट्रांजिशंस को आप अंजाम दे सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ डीएफए, as we are not allowed to keep any epsilon transition, so then we have to be very definite about the state transition. मतलब कौन सा इनपुट सिंबल, कौन सा नॉन एप्सिलॉन इनपुट सिंबल करेंट स्टेट पे अप्लाई हो रहा है और उस अप्लाई की वजह से वो कौन से नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन एप्सिलॉन होने से ही चल जाएगा। मान लो कि एक करेंट स्टेट आपके पास ए है, ए से आप 1 देने पे मान लो बी पे भी जा सकते हो या फिर आप सी पे भी जा सकते हो, लेकिन दोनों एज पे 1 ही लिखा हुआ है। तो एक ही इनपुट सिंबल देने पे डीएफए के केस में आप 2 डिफरेंट नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते। ओके, ए पे अगर आप 1 देने पे बी पे जा रहे हो, तो सी पे जाने के लिए आप सेम वही इनपुट सिंबल 1 देने पे वो नहीं जाना चाहिए फ्रॉम ए। ओके, सो दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब क्या, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि जितने भी इनपुट सिंबल्स है, मान लो कि आपके स्ट्रिंग में आपने अलाउ किया है कि 0 और 1 का स्ट्रिंग होगा। हाँ, 0 और 1 का ही स्ट्रिंग बनेगा, चाहे जो भी कॉम्बिनेशन आप या फिर जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। सो वहां पे जो भी स्ट्रिंग्स आपके होंगे वो 0 और 1 से ही बने हुए होंगे। इसका मतलब उस डीएफए सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स वहां पे रहेंगे, हर एक नंबर ऑफ स्टेट से एटमोस्ट 2 ही एज निकल सकता है। 1 इज फॉर 0, अनदर इज फॉर 1। ऐसा नहीं है कि 0 के लिए 2 निकल गया और 1 के लिए 1 निकला, या फिर 0 के लिए 1 निकला, 1 के लिए 2 एजेस इमर्ज हुए पर्टिकुलर कोई एक करंट स्टेट से। तो इसका मतलब तो वो नॉन डेफिनिटनेस को दिखाएगा, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लो कि लेट मी ड्रॉ इन अ बोर्ड। सो मान लो कि आपके पास एक स्टेट है ए। इन केस ऑफ योर एनएफए, आप सेम इनपुट सिंबल देने पे, सपोज आपने इनपुट सिंबल दिया 1, सो 1 देने पे आप बी में भी जा सकते हो, या फिर 1 देने पे मान लो कि आप सेल्फ लूप भी कर सकते हो। ओके, सो इसका मतलब आप डेफिनेट नहीं हो कि करंट स्टेट पे अगर 1 इनपुट गया तो आपका नेक्स्ट स्टेट कौन होने वाला है। कभी वो बी भी हो सकता है, कभी वो ए पे भी रह सकता है, राइट। सो इट इज अ केस ऑफ योर नॉन डिटरमिनिस्टिक, right? So you cannot determine by looking at the
इनपुट सिंबल, क्योंकि इनपुट सिंबल ही आपको डिलेमा में डाल सकता है कि आइदर यू कैन ट्रांजिशन टू बी और यू कैन स्टे इन ए इटसेल्फ। ओके, इन केस ऑफ डीएफए, अच्छा यहाँ पे ए से सपोज दूसरा एक एज निकल रहा है फॉर इनपुट सिंबल 0, so it is saying that you are going to the next state called C. Okay, so this is not a problem in case of NFA, but if you think that is it in DFA, then no, it is not in DFA, because DFA में एक particular input symbol के लिए ऐसे multiple ages नहीं हो सकते। ओके या इसके लिए ठीक है, क्योंकि A से 0 के लिए एक ही एज निकला है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस A से जब आप वन इनपुट सिंबल दे रहे हो, सो वन इनपुट सिंबल के लिए आपके पास दो डिफरेंट नेक्स्ट स्टेट का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, विच इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीएफए। सो इसका मतलब डीएफए में जब भी आपको करेंट स्टेट में आप कंसिडर करोगे कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एज कैन बी देयर, सो जितने इनपुट सिंबल रहेंगे उतना ही मैक्सिमम आपके पास इनपुट सिंबल हो सकता है। मतलब एक होगा 1 के लिए, ओके, एंड दूसरा होगा 0 के लिए, बिकॉज मैंने अभी कहा कि आपके इनपुट स्ट्रिंग में दो ही इनपुट सिंबल अलाउड है, विच इज 1 and 0, सो देयर कैन बी एट मोस्ट 2 एजेस। सो सेम चीज बी से भी लागू होता है। बी में भी आपके पास एक एज मैक्सिमम निकलेगा 0 के लिए और दूसरा मान लो 1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली सी के लिए भी वही होगा। मान लो कि ये मेरा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे मान लो एक 0 के लिए निकला और सपोज मान लो एक 1 के लिए निकला। ओके, सो आप देख सकते हो कि हर एक एज हर एक स्टेट पे देयर आर एट मोस्ट 2 एजेस। सो वाई 2? बिकॉज आपके पास दो ही इनपुट सिंबल है। अगर आपके पास 3 इनपुट सिंबल होता, सपोज 0 1 2, तो एट मोस्ट आपके पास हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक एक एज ही निकलता। ओके, तो इसलिए हम लोग मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डीएफए में कि एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इनपुट सिंबल अलाउड इन माय इनपुट स्ट्रिंग सेट। ओके, तो इसलिए उससे जो सेट भी बनाते हैं हम लोग, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट स्टेट विच इज प्रेजेंट इन माय एनएफए। उसका इक्विवेलेंट क्या स्टेट बनेगा डीएफए में, वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, so for that we apply the techniques called एप्सिलॉन क्लोजर। हाँ, या फिर कोई अगर मेजरमेंट के जरिए आप वो क्लोजर निकालना चाहो, तो एप्सिलॉन क्लोजर के जरिए हम लोग रीचेबिलिटी को अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कितने हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक रीच कर सकते हैं। अगर ये रीचेबिलिटी को हम लोग टेस्ट कर पाए, देन वी कैन मेक इक्विवेलेंट स्टेट इन आवर डीएफए फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एनएफए मशीन। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि रीचेबिलिटी चेक करना। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारा लैम्डा ट्रांजिशन आपको दिख रहा है, राइट। लैम्डा मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट नल ट्रांजिशंस, जहां पे कोई इनपुट सिंबल नहीं दिया गया है, बट स्टिल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने ट्रांजिशन किया है। फ्रॉम Q1 to Q2 यू हैव गॉन वाया एप्सिलॉन स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, मतलब आपने कोई भी इनपुट नहीं लिया, फिर भी आप Q1 से Q2 में आए, राइट। सिमिलरली Q1 से आप P1 में गए by taking a valid input symbol which is A, लेकिन P1 से आप P3 में या फिर P2 में आराम से जा सकते हो without taking any input symbol। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो, आप Q1 से Q2 में गए, Q2 में फिर से आपने एक वैलिड इनपुट सिंबल लिया A, लेकिन P4 और P4 में पहुंचे, P4 में जाके आप इजीली P5 में जा सकते हो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल। ओके, सो बेसिकली इफ आई से कि Q1 स्टेट जो मेरा इनिशियल स्टेट है, वहां पे अगर हम इस इनपुट सिंबल दे रहे हैं, तो हम कहाँ जा पाएंगे। अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, हाँ, कि Q1 स्टेट पे, Q1 इज योर करेंट स्टेट एंड उसमें आप इनपुट सिंबल अप्लाई कर रहे हो स्मॉल a, तो आप कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर इस पिक्चर को देख के बोलोगे कि पहले तो मुझे दिख रहा है कि Q1 से हम P1 में जा सकते हैं। ओके, सो P1 इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट स्टेट्स सेट। नेक्स्ट स्टेट्स सेट, क्यों मैं सेट बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप अभी देखोगे कि बहुत सारा दूसरे स्टेट्स यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। कैसे? क्योंकि Q1 में आपको डायरेक्ट एज दिख रहा है P1 तक,
जहां पे एज के ऊपर लिखा हुआ है ए, लेकिन Q1 से कोई इनपुट नहीं लेते हुए आप Q2 पे आ गए आराम से, हाँ, और Q2 पे अगर आप A लेते हो, Q2 स्टेट पे पहुंचने के बाद अगर आप A लेते हो, एक्चुअली आप Q1 पे ही A ले रहे हो, क्योंकि Q1 और Q2 को हम इजीली कभी भी मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि Q1 से Q2 मैंने कोई इनपुट सिंबल नहीं लिया, फिर भी हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके आ गए हैं। सो एक्चुअली जब हम Q1 पे A देने की बात करेंगे, सो Q1 पे A देना या फिर Q2 पे A देना बराबर है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन डिटेल है वो नल स्ट्रिंग का है। सो दैट मीन्स इजीली आई कैन मर्ज दिस टू। ओके, सो Q1 से एप्सिलॉन लेते हुए आप Q2 में पहुंचे, Q2 में आपने A इनपुट सिंबल अप्लाई किया, सो दिस इज इवेंचुअली गिविंग यू अ मीनिंग दैट आपने Q1 पे ही A अप्लाई किया। सो इसका मतलब क्या है कि Q1 से Q2 एप्सिलॉन की दूरी में है। ओके, सो दीज टू आर इन अ एप्सिलॉन क्लोजर। तो आप अगर Q1 का क्लोजर सेट निकालोगे कि कैसे हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन से कहां कहां पहुंच सकते हैं, तो आई कैन इजीली टेल यू कि Q1 से आप Q2 में इजीली पहुंच सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल टू ट्रांजिशन टू Q2 स्टेट, इट इज टेकिंग अ नल इनपुट स्ट्रिंग। ओके, तो इसलिए Q1 और Q2 बेसिकली देखा जाए तो एक ही स्टेट है, आप मर्ज कर सकते हो कभी भी। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेट की इंफॉर्मेशन में मैंने Q2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे जो P2 लिखा हुआ है, सो Q2 को इसलिए ऐड किया क्योंकि वहां पे हमने देखा कि वो इजीली मर्ज हो सकता है Q1 के साथ। ओके, सो इसका मतलब Q1 पे मैंने एप्सिलॉन ट्रांजिशन से Q2 पे पहुंचा, इसका मतलब हम Q1 में ही है एक्चुअली, हम सोच रहे हैं, और वहां पे मैंने A लिया, इनपुट सिंबल A लिया, और कहां पहुंच गए हम P4 में पहुंच गए। सो इसका मतलब है कि Q1 का ही नेक्स्ट स्टेट बन गया P4, इसलिए देखो सेट में P4 भी आ गया। ओके, अच्छा, अगर P4 आ गया है, सो P4 से P5 की दूरी भी फिर से नल ट्रांजिशन के द्वारा ही हुआ है, मतलब P4 से P5 तक पहुंचने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनी वैलिड इनपुट सिंबल, you can take null input string and you can make that transition. So that means Q2 से आप easily P5 में जा सकते हो via not taking any input symbol. So that is why P5 has come also into the set of your next state. ओके, अब उधर चलते हैं ऊपर की तरफ, जब हम P1 पे पहुंचे, P1 से P2 की दूरी नल इनपुट स्ट्रिंग के जरिए है, सिमिलरली P1 से P3 की दूरी नल इनपुट स्ट्रिंग के जरिए है। सो इसका मतलब क्या है कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल आप इजीली उन दोनों स्टेट पे भी आराम से आप ट्रेवर्स कर सकते हो। ओके, सो इसका मतलब ए सिर्फ इनपुट सिंबल देने पे ही हम P1 पे आ गए, और P1 से कुछ नहीं देने पर भी हम P2 में जा सकते हैं या फिर P3 में जा सकते हैं। सो दीज टू P2 एंड P3 आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेक्स्ट स्टेट ऑफ माई Q1 स्टेट, इसलिए P2 और P3 भी आपके सेट में आ गए। सो इसलिए इस तरीके से हम लोग जब एप्सिलॉन सिंबल को ट्रैक करते हुए हम लोग देखते हैं कि कितना दूरी हम तय कर पा रहे बाय टेकिंग वन वैलिड इनपुट सिंबल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर या फिर लैम्डा क्लोजर। ओके, सो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है कि लैम्डा क्लोजर मतलब आप कैसे सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, Q1 से आपने Q2 का मतलब Q1 का एक आपने क्लोजर सेट बनाया, क्योंकि Q1 और Q2 नाम के वास्ते ही अलग दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेट है, क्योंकि इनके बीच में एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। सो आइदर Q1 को आप और Q2 का अलग से रखो, या फिर Q2 को उसके ऊपर मर्ज कर दो, बात बराबर है। There is nothing you are going to change if you merge this Q2 and you overlap it with Q1, so you are not going to make any change. आपका resulting value एक ही रहेगा. So that means your Q1 and Q2 are in a closure. ओके, अच्छा, अब Q1 और Q2 अगर क्लोजर में आ गए तो उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ जो उनका नेक्स्ट स्टेट का जो ट्रांजिशन डिटेल है वो भी क्लोजर में आते जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि Q2 से जो लगा हुआ था P3, वो उसके नेक्स्ट स्टेट में जैसे ही आया P4 के साथ P5 भी खींचा हुआ आ गया, क्योंकि P4 और P5 खुद में क्लोजर मतलब एप्सिलॉन क्लोजर में कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पे नल या फिर लैम्डा ट्रांजिशन हो रहा है। सिमिलरली अगर P1 तक आप पहुंच गए, सो P1 के साथ P2 और P3 का रिश्ता भी कुछ इसी तरीके का है कि यू कैन इजीली गो टू P2 एंड P3। ओके, सो लाइकवाइज वी इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टेट्स in a particular set.
where we can reach via any lambda transition or epsilon transition. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शन मतलब हम लोग को एक NFA मशीन दिया जाएगा एंड वी विल बी आस्क्ड टू क्रिएट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग DFA. ठीक है, ये हमारा टास्क रहेगा. सो कभी कभी NFA में आपके पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन या फिर लैम्डा ट्रांजिशन मेंशन रहेगा, कभी कभी नहीं भी हो सकता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ओके, सो आपको क्या करना है कि आइदर उसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो या फिर ना हो, आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि इस NFA मशीन का कॉरेस्पॉन्डिंग DFA मशीन कैसा बनेगा. उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होंगे या फिर बहुत सारे स्टेट्स जो NFA में थे उनको कंबाइन करके हम एक स्टेट बनाएंगे DFA में. दैट विल टोटली डिपेंड कि आपका जो फिगर या फिर जो ट्रांजिशन डायग्राम आपको दिया गया है वो कैसा है और वहां पे क्या ट्रांजिशन डिटेल्स आपको दिए गए हैं. ओके, सो जाहिर सी बात है कि जब आप NFA बनाओगे, जो यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया कि अ नोड इन DFA, ये कभी कभी हो सकता है कि अ सेट ऑफ नोड्स विच इज प्रेजेंट इन योर NFA मशीन उनसे बन सकता है. सो इसका मतलब जो NFA मशीन में सपोज 3 स्टेट्स था, उनको क्लब करके मैंने जब DFA बनाया तो DFA में वो एक स्टेट बन गया. ओके, सो ये क्लब हमने किया, इस क्लबिंग करने के पीछे भी जरूर कोई लॉजिक हमने जरूर लगाया होगा, तभी जाके हम तीनों को मिला के एक कॉन्क्रीट एक सिंगल स्टेट कंसिडर कर रहे हैं इन माय DFA. ओके, सो हाउ वुड वी कंसिडर, वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे क्लब कर सकते हैं. अच्छा, अगर हमने क्लब किया है, इसका मतलब जो NFA में 3 स्टेट्स का ट्रांजिशन डिटेल्स था या फिर मतलब उन 3 स्टेट से जहां जहां हम जा सकते थे, तो उनका क्या होगा हाल जब हम उसको DFA में कन्वर्ट करेंगे. सो ऑब्वियसली वो भी हमें टेक केयर करना पड़ेगा जब हम DFA में उसको मर्ज कर रहे हैं कि 3 स्टेट को मिला के सपोज हम जब एक मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना रहे, तो हमें उनके ट्रांजिशन डिटेल्स को भी हमें इक्वली टेक केयर करना है. ऐसा नहीं कि हमने क्लब कर दिया लेकिन उनमें से किसी का ट्रांजिशन डिटेल्स हम DFA में देना छोड़ दिए या फिर भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता है. ओके, सो ऑल द ट्रांजिशंस among these nodes will be also taken care equally when you are making a single node in your DFA system. Okay, so ये हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं. तो हम लोग नॉर्मली इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर टेक्निक का, जो मैंने अभी प्रीवियस 2 स्लाइड में समझाया कि एप्सिलॉन क्लोजर के जरिए अगर हम देखते हैं कि हम लोग दूसरे किसी स्टेट तक पहुंच पा रहे, देन वी कैन इजीली वी टेल कि इन स्टेट्स को हम लोग मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना सकते हैं. जैसे कि मैंने प्रीवियस यहाँ पे दिखाया कि Q1 और Q2, यहाँ पे 2 अलग स्टेट रखने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों की दूरी है लैम्डा या फिर एप्सिलॉन. मतलब एक्चुअली कोई इनपुट सिंबल यहाँ पे जा ही नहीं रहा है. तो अगर मैं कभी Q2 को ओवरलैप करके Q1 के ऊपर छोड़ दूं और दोनों को मर्ज कर दूं, तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन रखते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रख भी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो इस तरीके से हम लोग पहले एप्सिलॉन क्लोजर असल में है या नहीं है उनको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं. ओके, चेक करने के बाद ही हम लोग मर्ज करेंगे या फिर कोई न्यू स्टेट क्रिएट होगा फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग स्टेट्स इंफॉर्मेशन, वो हम लोग डिसाइड करते हैं. ओके, अच्छा, और जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग DFA बनाएंगे, तो DFA बनाने के वक्त हमें 2 डिफरेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वन इज इनिशियल स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट स्टेट, और अनदर इज फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट. ओके, तो NFA मशीन का जो स्टार्ट स्टेट रहेगा वो ही DFA मशीन का स्टार्ट स्टेट बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे NFA मशीन में वी कैन हैव मोर देन वन स्टार्ट स्टेट. no sorry, more than one start state नहीं, more than one start state, लेकिन उसमें क्लोजर के जरिए आपके पास मोर देन वन स्टेट्स इंक्लूड हो सकते हैं. जैसे कि मेरे इस फिगर में ही देखो, वो लास्ट फिगर जो मैंने दिखाया था, लेट्स सपोज कि Q1 अगर मेरा स्टार्ट स्टेट था, तो Q1 में Q2 को हम लोग इजीली इंक्लूड कर सकते हैं एज अ इनिशियल स्टेट, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों एप्सिलॉन क्लोजर में कनेक्टेड है. तो इसका मतलब हम लोग अगर Q1 को स्टार्ट स्टेट के हिसाब से कंसिडर करें, देन वी कैन इजीली कंसिडर Q2 आल्सो इन दैट सेट.
क्योंकि Q2 उससे एप्सिलॉन की दूरी पे है एंड वी विल कंसीडर कि Q1 और Q2 दोनों Q1 के क्लोजर में आ रहे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर में आ रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग DFA मशीन बनाते हैं और DFA मशीन का स्टार्ट स्टेट कौन बनेगा वो डिसाइड करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो NFA मशीन का इनिशियल स्टेट था, लेट्स सपोज दैट वाज Q0, उसके एप्सिलॉन क्लोजर में कौन कौन से सेट आए हैं, कौन कौन से स्टेट्स आए हैं, जो उनके एप्सिलॉन क्लोजर में मेंबर ऐड हुए हैं, उन सारे को मिला के हम एक DFA का इनिशियल स्टेट बना सकते हैं। ओके, सो आई विल शो यू कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, व्हाट अबाउट द फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट? तो फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि ऑल सबसेट ऑफ स्टेट्स of your NFA which contains the epsilon transition, they contain an accepting state। मतलब NFA में जो ऐसे ट्रांजिशंस आपको दिखेंगे जहां पे NFA मशीन का फाइनल स्टेट मौजूद है, वो सारे ट्रांजिशन डिटेल्स क्लब होके DFA के एक्सेप्टिंग स्टेट बन सकते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे हम लोग कोई ट्रांजिशन डिटेल्स हमें नहीं मिलता है। मतलब ट्रांजिशन डिटेल्स का मतलब सिर्फ एक एज से दूसरे एज पे एरो खींचना नहीं होता है, बल्कि वो एज क्या मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट से फाइनल स्टेट तक लेके जा रहा है या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट तक लेके जा रहा है। अगर नहीं लेके जा सकता तो हम उसे डेड स्टेट डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज वी विल कंसिडर दैट एज अ वैलिड स्टेट। ओके, तो डेड स्टेट का मतलब ऐसा होता है कि उस स्टेट तक हम कभी भी फाइनल स्टेट में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे जो भी रास्ता हम अपना ले, कभी भी वो मुझे फाइनल स्टेट तक नहीं ले जाएगा। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा कोई एजेस मौजूद हो जो कि फाइनल स्टेट तक नहीं लेके जा रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि इट इज अ डेड स्टेट। ओके, सो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे Q0 इज योर इनिशियल स्टेट। हाँ, Q0 पे आपको दिख रहा है कि दिस इज एन NFA। व्हाई दिस इज एन NFA? क्योंकि आपको दिख रहा है कि Q0 पे A सिंबल देने पे तीन अलग अलग एजेस निकल गए। वन इज स्टेइंग एज अ सेल्फ लूप, Q0 पे A देने पे वो Q0 पे रह रहा है। सेकेंड इज शोइंग कि Q0 पे A देने पे इट कैन गो टू द फाइनल स्टेट Q1, एंड थर्ड एज इज शोइंग कि Q0 पे A देने पे यू कैन गो टू नेक्स्ट स्टेट Q2। ओके, सो अगर हम Q0 पे A देने का डिटेल्स अगर हम कलेक्ट करें, सो आई विल गेट 3 डिफरेंट नेक्स्ट स्टेट डिटेल्स, राइट? Q0 से Q0 में ही रह रहे हैं, Q0 पे Q1 पे जा रहे हैं, Q0 से Q2 पे जा रहे हैं। सो माय नेक्स्ट स्टेट विल बी Q0, Q1, Q2 on giving the same input symbol A to the current state Q0। ओके, सो इसके वाइज अगर हम यहाँ पे डायग्राम खींचे, सो डायग्राम में मुझे इजीली दिख रहा है कि अगर हम लिखते हैं कि Q0 पे अगर A देने पे हम डिटेल खोजना चाहें अगर कि क्या मेरा नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे इजीली कहेंगे कि आइदर आई कैन स्टे इन Q0 या फिर Q1 which is a final state या फिर Q2, क्योंकि तीनों ही एक ही इनपुट सिंबल के जरिए कनेक्टेड है। तीनों स्टेट में ही हम जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम इनपुट सिंबल। देखो यहाँ पे ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। Q1 में ए देने पे हम लोग कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि देखो Q1 से A के लिए कोई एज निकल नहीं रहा है। इन वहां पे मतलब आउटवर्ड कोई एज नहीं है Q1 से। Q1 से सिर्फ B के लिए आउटवर्ड एज है कि Q1 पे अगर हमने B दिया तो वो Q1 पे ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली Q2 पे भी वही, A के लिए या फिर B के लिए कोई एज नहीं है, सिर्फ C के लिए एज है। तो Q2 पे अगर हम C देंगे इट विल स्टे इन Q2 इटसेल्फ। लेकिन Q2 और Q1 दोनों एप्सिलॉन से कनेक्टेड है, सो इसका मतलब ये दोनों क्लोजर सेट में आ सकते हैं। अगर मैं Q2 का कभी क्लोजर निकालूं, सो आई कैन इजिली से कि Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर में Q1 भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय एप्सिलॉन ट्रांजिशन या फिर लैम्डा ट्रांजिशन। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअली क्लोजर के बारे में अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहूँ, सो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर में कौन आएगा?
Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में कोई नहीं आएगा, बिकॉज Q0 किसी के साथ भी एप्सिलॉन से कनेक्टेड नहीं है, सो ओनली Q0 विल कम। Q1 का अगर हम लोग चेक करना चाहे कि एप्सिलॉन क्लोजर में कौन आएगा, सो Q1 भी किसी के साथ एप्सिलॉन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। कनेक्टेड हम कब बोलेंगे, जब उससे कोई एज निकलेगा, एप्सिलॉन एज निकलेगा उस पर्टिकुलर स्टेट से। सो Q1 से कोई पर्टिकुलर एज नहीं निकल रहा है जहां पे आपको एप्सिलॉन देखने को मिल रहा है, सो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर में Q1 ही रहेगा। बट Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर में हमें दो स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो Q2 इज हैविंग अ एज जिससे वो एप्सिलॉन के जरिए वो Q1 से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को। सो इसका मतलब अगर हम Q2 का क्लोजर निकाले, सो Q2 एंड Q1 बोथ विल कम। ओके, सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये सेम फंडा वी विल यूज फॉर आवर कन्वर्शन पर्पस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है कि हम लोग ऐसे करके एप्सिलॉन क्लोजर से हम लोग चेक करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से एंडिंग स्टेट तक या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट तक हम लोग कितने कितने स्टेट में हम लोग विथ एप्सिलॉन सिंबल हम लोग ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो जितने तक हम लोग एप्सिलॉन सिंबल से ट्रैवर्स कर पाएंगे वो सारे स्टेट्स उसके क्लोजर में आते जाएंगे, क्लोजर में इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q2 का क्लोजर कोई नहीं है, सो ओनली Q2 इज देयर। तो Q2 के जो पिक्चर यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो आपने देखा उसी से यहाँ पे ये बनाया गया है, ठीक है। सो Q2 इज योर इनिशियल स्टेट, इसलिए एरो दिया गया है। सो Q2 का क्लोजर में कोई नहीं था, सो इसलिए सॉरी नॉट Q2, बार बार मैं Q2 बोली हूँ। Q0 इज योर इनिशियल स्टेट, सो Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में कोई नहीं था, ओनली Q0 ही था। सो Q0 was kept as it is and it is being made as a starting state of your DFA, ठीक है। अच्छा, A सिंबल देने पे Q0 पे A सिंबल देने पे वो कहां कहां जा सकता है, Q0 पे भी रह सकता है, Q1 पे भी रह सकता है और Q2 पे भी रह सकता है एज अ नेक्स्ट स्टेट। हाँ, तो इसलिए देखो इन तीनों को मिला के एक सिंगल स्टेट बना दिया गया। ओके, तीनों को क्लब करके डीएफए में एक सिंगल स्टेट बना दिया गया और उसको सपोज हमने कोई नाम दे सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन इन तीनों स्टेट में जाने के लिए Q0 से सेम इनपुट सिंबल देना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ए इनपुट सिंबल के लिए करेंट स्टेट Q0 से एक ही एज निकला, जबकि देखो एनएफए में क्या था कि एक इनपुट सिंबल के लिए तीन अलग अलग एज निकले थे। एक सेल्फ लूप क्रिएट कर रहा था, एक Q1 को कनेक्ट कर रहा था Q0 से, तीसरा Q0 से Q2 को कनेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब A के लिए एक ही एज निकला। ओके, अच्छा, अब Q0 में B सिंबल का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, Q0 पे C सिंबल का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया कि एक डेड स्टेट के साथ जोड़ दिया विच इज केप्ट इन अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स के जरिए हमने दिखा दिया। तो ये सिर्फ दिखाया गया ओनली फॉर अ सिंगल स्टेट Q0 विच विल बी इन योर डीएफए मशीन। तो डीएफए में जब आप स्टेट बनाओगे तो Q0 को एक स्टेट बनाओगे और Q0 Q1 Q2 को मिला के एक स्टेट बनाओगे। ओके, सो इसका मतलब जब आप एक ऐसा स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट से आप बनाते हो तो डीएफए में आपको उस कॉम्बिनेशन वाले स्टेट से भी, यस, एनीबॉडी इज आस्किंग एनीथिंग, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, एनी डाउट? ओके, सो Q0 से जब आप आई मीन नॉट Q0, विद द हेल्प ऑफ दिस एप्सिलॉन क्लोजर जब आप कॉम्बिनेशन से डीएफए में एक सिंगल स्टेट बनाते हो तो आपको डीएफए में बनाने के बाद उस कॉम्बिनेशन स्टेट्स का भी आपको अलग अलग से चेक करना पड़ता है। मान लो कि यहाँ पे ये Q0 Q1 और Q2 मिला के मेरा एक स्टेट बना, मान लो कि उसका नाम हम कैपिटल ए दे रहे हैं। मतलब कैपिटल ए जब भी हम लिखेंगे तो उसका मतलब ही ये होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस Q0 Q1 Q2 एज ए होल। ओके, अब इस कैपिटल ए स्टेट पे मुझे चेक करना पड़ेगा फर्दर इन माय डीएफए सिस्टम कि उसमें कैपिटल ए देने पे क्या हल हुआ,
कैपिटल ए बोलिए, स्मॉल ए देने पे क्या हल हुआ, स्मॉल बी देने पे क्या हल हुआ और स्मॉल सी देने पे क्या हल हुआ। मतलब जितने भी यहाँ पे वैलिड इनपुट स्ट्रिंग है एप्सिलॉन के अलावा, उन सारे इनपुट स्ट्रिंग के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, इनपुट सिंबल के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ओके, तो ये चीज हम लोग देखेंगे विथ एन एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो अब तक आपने सिर्फ ऊपर वाले स्लाइड में आपने इतना तक देखा था, सिर्फ आपने Q0 तक ही आपने अपना डीएफए बनाना आपने सीमित रखा था। अब जब आपको एक नया स्टेट मिल गया, Q0 Q1 Q2 के कॉम्बिनेशन से बना एक नया स्टेट, वहां पे आपने चेक करना शुरू किया कि ए देने पे क्या हल होगा, बी देने पे क्या हल होगा और सी देने पे क्या हल होगा। सो लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड जहां पे Q0 Q1 और Q2 का इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। लेट्स कम हियर। सो Q0 पे देखो B का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई एज ऐसा निकल ही नहीं रहा है जो B का इंफॉर्मेशन दे। लेकिन Q1 से B का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि Q1 पे अगर हम B देंगे तो वो Q1 पे ही रहेगा। सिमिलरली Q2 पे भी B का कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां से कोई एज निकल ही नहीं रहा है जहां पे B दिखाई दे। तो इसका मतलब अगर Q2 Q1 और Q0 कंबाइंड स्टेट जो मैंने बनाया है विच आई नेम्ड एज कैपिटल ए, तो ए पे अगर हम बी के लिए चेक करें तो मुझे एक ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो Q1 पे रह रहा है। ओके, तो वही चीज देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि Q2 Q1 Q0 Q1 Q2 में अगर हम ए दे रहे हैं सो इट विल गो टू Q1। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, इट विल नॉट बी बी, हाँ यस इट विल बी बी, बी देने पे Q1 पे ही रहेगा। लेकिन ए देने पे क्या हो रहा है, इस ए के लिए यहाँ पे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है क्योंकि बोलो यहाँ पे जब हम Q0 Q1 और Q2 तीनों के लिए चेक करेंगे सो इंडिविजुअली सिर्फ Q0 ही तीन स्टेट का इंफॉर्मेशन दे देगा कि Q0 पे ए देने पे वो Q0 पे रह रहा है या फिर Q1 पे जा रहा है या फिर Q2 पे जा रहा है। तो बाकी दोनों का अगर रहे या ना रहे, ये Q0 से ही मुझे इंफॉर्मेशन ये मिल जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट पे जिसका नाम हम कैपिटल ए दिए हैं वहां पे अगर स्मॉल ए अप्लाई करते हैं तो वो कैपिटल ए पे ही रहेगा। ओके, सो ये हम कैसे कर रहे हैं बेसिकली ये हम दिखाएंगे अभी, रुको। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या था इंफॉर्मेशन कि Q0 पे सेल्फ लूप देने पे ए था, Q0 पे ए देने पे Q1 पे भी जा रहा था, और Q0 पे ए देने पे वो Q2 पे भी जा रहा था। ये था मेरा फिगर। ओके, तो ये मेरा एनएफए में है, ये तो बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन था Q1 पे बी देने पे वो Q1 पे ही रह रहा है और Q2 पे सी देने पे वो Q2 पे ही रह रहा है और Q2 Q1 के साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन से कनेक्टेड है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम इसी चीज को यहाँ पे अगर लिखते हैं कि Q0 इंक्रीज द साइज, मान लो कि Q0 पे ए देने पे स्मॉल ए देने पे क्या ट्रांजिशन डिटेल्स हमें मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि Q0 पे ए देने पे इट कैन गो टू Q1, ठीक है, एज वेल एज इट कैन स्टे इन Q0, खुद में सेल्फ लूप है, और Q2 में भी जा सकता है। ओके, देखो यहाँ पे डायग्राम से देखो, Q0 पे ए देने पे वो Q0 पे भी रह सकता है, Q1 पे भी जा सकते हैं और Q2 पे भी जा सकते हैं। इसका मतलब Q0 पे अगर ए अप्लाई करे तो उसके तीन अलग अलग नेक्स्ट स्टेट बन सकते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा
तो इसका मतलब इन तीनों को मिला के हम अगर एक स्टेट कंसिडर करें इन माय डीएफए, क्योंकि ये हमें करना ही पड़ेगा, ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे जब हम डीएफए बनाएंगे, सो डीएफए में एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए अलग अलग नेक्स्ट सिंबल हम नहीं पा सकते फॉर द सेम करंट स्टेट। ओके, तो हमें इन तीनों को मिला के कंबाइन करके एक स्टेट बनाना पड़ेगा इफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डीएफए, क्योंकि ए के लिए एक ही एज निकल सकता है व्हेन आई विल क्रिएट माय डीएफए। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ए स्टेट, आपको एक नया स्टेट मिला, सो अब आप क्या करोगे कि ए पे चेक करना शुरू करोगे कि बी देने पे, अच्छा पहले इतना तक कर ले कि Q0 पे अगर हम B अप्लाई करते हैं तो क्या हाल हो रहा है। सो Q0 पे B के लिए कोई इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे इस पिक्चर में, क्योंकि कोई एज ऐसा दिख ही नहीं रहा है जहां पे B का कोई ट्रांजिशन दिखे, B इनपुट सिंबल देने पे कोई ट्रांजिशन दिखे फ्रॉम Q0 स्टेट। ओके, सो आई विल राइट हियर 5। आई विल राइट हियर 5 को मैं ऐसे अभी लिख रही हूँ, सो यू कीप दैट सिंबल, हाँ 5। अच्छा, नेक्स्ट Q0 पे C इनपुट सिंबल देने पे भी क्या मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है? Q0 पे अगर हम C इनपुट सिंबल देते हैं, नहीं, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है क्योंकि फिगर में कुछ ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है फॉर योर C इनपुट। देखो Q0 पे C का कोई एज निकल ही नहीं रहा है। ओके, अच्छा, अब इतना तक जब हमने बनाया, यहां तक हमारे पास एक ही सिर्फ न्यू स्टेट कलेक्ट हुआ है जिसका नाम है कैपिटल ए। तो जब हम कैपिटल ए बोलेंगे, इसका मतलब हम एक साथ Q0, Q1 और Q2 के कॉम्बिनेशन को हम एड्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो देन आई विल चेक कि ए स्टेट पे अगर स्मॉल ए इनपुट सिंबल देने तो क्या इफेक्ट होगा, ए स्टेट पे अगर हम स्मॉल बी इनपुट सिंबल दे रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर ए स्टेट पे अगर हम सी इनपुट सिंबल दे रहे हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट, इसका मतलब इंडिविजुअली आई एम एड्रेसिंग कि Q0 पे ए देने पे क्या इफेक्ट हुआ, यूनियन Q1 पे ए देने पे क्या इफेक्ट हुआ, यूनियन Q2 पे ए देने पे क्या इफेक्ट हुआ, दैट आई एम गोइंग टू चेक, बिकॉज ए का मतलब है कि तीनों का कॉम्बिनेशन, तो तीनों पे ही ए का असर क्या होगा, दैट आई हैव टू चेक। तो इनमें से सिर्फ Q1 ही अपना ए पे असर दिखाएगा, बिकॉज अभी आपको पता चला कि वो तीन अलग अलग स्टेट का इंफॉर्मेशन रख रहा है, हाँ, क्योंकि ए देने पे उसके लिए 3 एजेस अवेलेबल है इन द पिक्चर। देखो Q0 पे ए देने पे 3 एजेस आपके पास अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे Q0 पे ए देने पे वो कैपिटल ए पे जा रहा है, आप बोल सकते हो इजीली। उसके बाद यूनियन Q1 पे ए देने पे क्या कहीं पे जा सकता है, क्या वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, नहीं, Q1 से देखो एक ही मात्र एज निकल रहा है विच इज फॉर बी नॉट फॉर ए, सो इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे आपको 5 इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सो यू विल राइट हियर 5। ओके, सिमिलरली Q2 पे ए देने पे क्या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपके पिक्चर से, आप देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, Q2 पे एकमात्र इंफॉर्मेशन आपको C के लिए मिल रहा है, राइट, सो आप यहाँ पे भी 5 लिख दोगे, 5 मतलब कोई भी स्टेट पे नहीं जा रहा है। सो अगर इन तीनों को हम यूनियन करते हैं, A यूनियन 5, सो रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा, A ही होगा। इसका मतलब A कैपिटल A स्टेट पे अगर हम स्मॉल a सिंबल अप्लाई करते हैं, सो इट इज स्टेइंग इन A इटसेल्फ। वही चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, देखो दिस Q0, Q1, Q2, दिस इज नथिंग बट माई कैपिटल A। उस पे अगर आप A दे रहे हो, देखो देखो एक सेल्फ लूप क्रिएट हो रहा है, सो बेसिकली वो A पे ही रह रहा है, ओके, स्मॉल a देने पे। बट इफ आई टॉक अबाउट कि कैपिटल ए पे अगर हम स्मॉल b देते हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हम सेम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, बट माई इनपुट सिंबल विल बी लिटिल डिफरेंट, दिस टाइम दिस विल बी b इंस्टेड ऑफ a, राइट, सो आई विल राइट हियर कि Q0 पे B देने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, Q1 पे B देने पे
बी देने पे क्या इफेक्ट हो रहा है और Q2 पे बी देने पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ऑल टुगेदर जो भी मेरा इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, राइट। सो Q0 पे बी का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, देखो कोई एज नहीं निकल रहा है Q0 से, बट Q1 से बी के लिए एज निकल रहा है। इट इज टेलिंग कि Q1 पे अगर हम बी देंगे सो इट विल स्टे इन Q1 इटसेल्फ, राइट। सो इसका मतलब Q0 ने मुझे निराश कर दिया, इट हैज गिवन मी 5 इंफॉर्मेशन, बट Q1 ने कहा कि वो Q1 पे ही रहेगा। ओके, Q1 पे अगर बी दिया जाए सो वो Q1 पे ही रहेगा। सो Q1 से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट Q2 ने भी निराश किया, क्योंकि Q2 का भी कोई बी वाला इंफॉर्मेशन है नहीं, देखो कोई बी के लिए एज नहीं निकल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गिविंग मी 5 इंफॉर्मेशन। ओके, सो हियर ऑल्सो आई गॉट 5। सो अगर इन तीनों को कंबाइन करते हैं सो इसने क्या इंफॉर्मेशन दिया कि इट विल गो टू Q1, नेक्स्ट स्टेट Q1। इसका मतलब कैपिटल ए स्टेट पे अगर मैंने बी अप्लाई किया सो ये नेक्स्ट स्टेट Q1 पे जाएगा। सो लेट्स गो बैक टू माय फिगर। कैपिटल ए मतलब Q0 Q1 Q2, उसमें मैंने बी अप्लाई किया सो इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेट Q1। ओके, अच्छा अब तक के लिए आपको क्या क्या नया स्टेट मिला है। Q0 एक स्टेट मिला है जो डीएफए में बनेगा, कैपिटल ए एक स्टेट मिला है जो डीएफए में बनेगा, और तीसरा आपने कलेक्ट किया है Q1। सो इसका मतलब आपको Q1 के लिए भी ए बी सी का क्या हाल हो रहा है वो देखना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कैपिटल ए पे अगर मैंने सी दिया तो क्या हाल होगा। ठीक है, तो उसमें भी हम सेम ही करेंगे, बट ओनली माई सिंबल विल चेंज कि Q0 पे सी देने पे क्या इफेक्ट हुआ, Q1 पे सी देने पे क्या इफेक्ट हुआ, और Q2 पे सी देने पे क्या इफेक्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पे Q0 ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि Q0 के पास कोई एक ऐसा एज है ही नहीं जो सी के लिए निकल रहा है। तो इसका मतलब इट हैज गिवन मी 5 इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट Q1 ने भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि Q1 से भी देखो सी के लिए कोई एज नहीं निकल रहा है, ओनली बी के लिए निकल रहा था, वो तो हम लोग कर चुके हैं। सो सी के लिए अगर नहीं निकल रहा है मतलब उसने मुझे 5 इंफॉर्मेशन दिया, नो इंफॉर्मेशन। ओके, बट Q2 विल गिव मी इंफॉर्मेशन, क्योंकि Q2 में देखो C के लिए एक एज निकल रहा है एंड दैट इज अ सेल्फ लूप। मतलब Q2 में अगर आप C अप्लाई करते हो इनपुट सिंबल, इट विल स्टे इन Q2 इटसेल्फ। ओके, सो हियर आई कैन राइट कि वो Q2 में जा रहा है। सो अगर मैं Q2 यूनियन 5 करती हूँ सो इट विल गिव मी इंफॉर्मेशन नथिंग बट Q2। सो इसका मतलब कैपिटल ए स्टेट पे अगर आप C अप्लाई करते हो सो वेर यू आर लैंडिंग अप टू, यू आर लैंडिंग टू Q2 स्टेट। ओके, सो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया, देखो Q2 स्टेट। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि नॉट ओनली Q2, यहाँ पे Q2 नाम से आपको Q2 का क्लोजर देखना पड़ेगा। सिमिलरली Q1 मतलब आपको यहाँ पे Q1 का क्लोजर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि Q2 और Q1 एक दूसरे से एप्सिलॉन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जब जब Q2 का नाम आएगा सो Q2 के साथ Q1 को भी जोड़ा जाएगा, बिकॉज दे टू आर इन अ क्लोजर रिलेशनशिप। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे मैंने Q2 जब लिखा है सो इट इज नॉट ओनली Q2 बट Q2's क्लोजर। सो Q2's क्लोजर मतलब Q2 इंक्लूडिंग Q1। अब आप पूछ सकते हो कि मैम प्रीवियस केस में क्यों नहीं आप बताई। सो प्रीवियस केस में Q1 का क्लोजर अगर आप देखो सो Q1 का क्लोजर खुद Q1 ही था। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे Q1 लिखना और Q1 का क्लोजर लिखना एक ही बात हुआ। लेकिन यहाँ पे बेसिकली Q2 के बजाय हम लोग यहाँ पे Q2 और Q1 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि Q2 और Q1 एक दूसरे के साथ क्लोजर रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। तो Q2 में पहुंचने का मतलब ही ये है कि हम इजिली Q1 पे जा सकते हैं विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम में आपको जो यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिखा, इस डायग्राम में आपको देखने को मिला पिंक कलर में कि Q1 इंक्लूडिंग Q2 दोनों दिया हुआ है, मतलब Q2 का क्लोजर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जब आप पहुंचे तो इस लाइन तक जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि आपने ए का 3 केस, ये तीन केस जो है ए के लिए आपने कवर कर लिया। ठीक है, लेकिन आप अलग से Q1 का या फिर Q2 का क्लोजर का आपने चेक नहीं किया। सो इसका मतलब वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। सो इसका मतलब Q1 पे ए देने पे क्या होगा वो आप अलग से चेक करोगे।
सिमिलरली Q1 पे B देने पे क्या होगा वो आप चेक करोगे, क्योंकि ये सारे इंक्लूड होंगे आपके डीएफए में। जब आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए बनेगा इस एनएफए से, तो वहां पे इन सारे का डिटेल आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा कि हम लोग एक दो स्टेट या फिर दो तीन स्टेट को मिला के जब हम लोग क्लब करते हैं, तो हमें उनके सारे ट्रांजिशन डिटेल्स को भी मतलब एकदम माइन्यूटली हमें कैप्चर करना पड़ता है। कोई ट्रांजिशन को हम भूल गए जो ओरिजिनल एनएफए में मौजूद था, लेकिन डीएफए में हमने उनको इंक्लूड नहीं किया, ये हो नहीं सकता। इसलिए हमें जब भी कोई नया स्टेट मिलेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 स्टेट्स, तो हमें उनका सारा ट्रांजिशन डिटेल इस तरीके से इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 स्टेट में जब आप आए तो Q1 पे ए का क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि Q1 से कोई ए का कोई एज है ही नहीं। देखो, कोई एज है ही नहीं, निकला ही नहीं है, सिर्फ बी के लिए है, राइट। सो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे कि ये 5, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। लेकिन बी के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास कि Q1 पे वो बी अगर इनपुट लेता है, सो इट विल स्टे इन Q1 इटसेल्फ। सिमिलरली Q1 पे सी का भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सो इट विल गिव मी 5। ओके, सो यहाँ पे जब आप डायग्राम में जब दिखाओगे, सो डायग्राम में आपको Q1 के लिए भी आपको इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा कि Q1 पे ए देने पे आप कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो। सो इसलिए देखो यहाँ पे Q1 क्लोजर से आप एक 5 दिखा रहे हो, लेकिन बी में आप इंडिविजुअली दिखा रहे हो कि बी में अगर आप अप्लाई करते हो, सो यू आर स्टेइंग इन Q1 इटसेल्फ। ओके, सिमिलरली ये हो गया मेरा Q1 का सारा चेकिंग। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि Q2 के क्लोजर, मतलब ये भी एक नया स्टेट आपने अभी कलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए भी मुझे इक्वली चेक करना पड़ेगा कि Q1 कॉमा Q2 इन दोनों पे ए का क्या हाल है, सिमिलरली बी का क्या हाल है, सी का क्या हाल है। सो ए बी सी तीन ही मेरे वैलिड इनपुट सिंबल है, तो इंडिविजुअली मुझे इनके लिए भी चेकिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये Q1 और Q2 दोनों में ही देखो कोई आपके पास ए का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई एज निकल ही नहीं रहा है। सो इट इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट 5, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर 5। ओके, बट Q1 और Q2 दोनों में से एक ने कहा कि वो Q1 पे ही रहेगा, क्योंकि देखो पिक्चर में ही दिख रहा है Q1 पे अगर B देते हो तो वो Q1 पे ही रहेगा। लेकिन Q2 के पास B के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो B यूनियन 5 मतलब B यूनियन 5 बोल रही हूँ, Q1 यूनियन 5 मतलब वो Q1 पे ही रहेगा। सिमिलरली Q1 और Q2 में से Q2 के पास C के लिए इंफॉर्मेशन है, जबकि Q1 के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो, Q2 के पास C का इंफॉर्मेशन है, बट Q1 के पास C का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, सो इसका मतलब Q2 यूनियन 5, सो विच इज इक्वल टू Q2। सो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली अगर दिखाएं कि Q1 और Q2 में C का इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिला है कि Q2 का मतलब है Q2 का क्लोजर, यहाँ पे Q2 मतलब है Q2 का क्लोजर। ओके, ये याद रखना। सो Q2 का क्लोजर का मतलब ही ये कि Q1 इंक्लूडिंग Q2, Q1 इंक्लूडिंग Q2। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि C देने पे Q2 के क्लोजर में ही वो रहा, बी देने पे सिर्फ Q1 का इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ, लेकिन ए देने पे किसी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सो दैट इज डेड। ओके, अब ये जो हमने यहाँ तक हमने देखा, तो इसका मतलब हम अगर डीएफए में इन सारे को इंडिविजुअली बैठाते हैं, सो मेरे यहाँ पे नया नया क्या क्या स्टेट क्रिएट हुआ, लेट मी गो बैक। मेरे पास Q0 हम सियान कलर से हम डिनोट कर रहे हैं कि डीएफए में नया नया स्टेट क्या बनेगा। वन इज Q0, another is capital A, third one is
Q1 का क्लोजर और Q1. फोर्थ वन इज Q2 का क्लोजर विच इज Q1 एंड Q2. ओके, ये चार देखो आपने कलेक्शन किया स्टेट. सो इन चारों के लिए आपने चेक किया. देखो Q0 के लिए पहले ही आपने चेक कर दिया कि ABC क्या क्या उसका ट्रांजिशन डिटेल है. कैपिटल A के लिए आपने चेक किया ABC क्या उनका ट्रांजिशन डिटेल है. Q1 के लिए आपने चेक किया Q1 क्लोजर के लिए ABC क्या उनके ट्रांजिशन डिटेल्स है. या फिर Q2 का क्लोजर जिसको हम लोग Q1 और Q2 के कॉम्बिनेशन से बनाया उसका भी आपने ABC का चेकिंग कर लिया. ओके, तो अगर इनको हम पुट करते हैं अपने DFA में इसको देख देख के तो मेरा डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनेगा क्योंकि मेरे पास चार स्टेट कलेक्ट हुए. सो लेट मी ड्रॉ हियर. मेरे पास चार स्टेट कलेक्ट हुआ. वन इज Q0, अनदर इज कैपिटल A. मैं कैपिटल A लिख रही हूं, आप Q0 Q1 Q2 उस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, तीसरा हुआ Q1 क्लोजर या फिर Q1 ओनली. ठीक है ना. और Q2 का क्लोजर विच इज नथिंग बट. अच्छा, इस Q1 Q2 के क्लोजर को हम नाम दे देते B. हाँ, कैपिटल B. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम B, A लिखेंगे तो आपको इजी होगा समझने में. हाँ, यहाँ पे मैं B नाम देती हूँ. Q1 और Q2 को हम B नाम देते हैं. तो मेरा यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझने में इजी होगा. तो इसको हम नाम देते हैं B. B का मतलब ये है कि Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन से जो स्टेट बना है Q2 के क्लोजर से. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि Q0 पे अगर हम स्मॉल a देंगे इट इज गोइंग टू स्टेट A. हाँ, ये पहला लाइन आपने देखा. Q0 पे अगर A दे रहे तो इट इज गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट A. सो इसका मतलब मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगी सो Q0 पे A देने पे इट इज गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट A. ओके. नेक्स्ट, Q0 पे B देने पे कहीं नहीं जा रहा है, C देने पे भी कहीं नहीं जा रहा है. सो सिंपली आई कैन ड्रॉ दिस डेड स्टेट इंफॉर्मेशन कि B और C देने पे इट इज गोइंग टू अ डेड स्टेट. डेड स्टेट को लेट्स सपोज मैं D से नाम दे रही हूँ. ठीक है. डेड स्टेट B और C देने पे. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल A का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. A पे अगर हम स्मॉल a दे रहे हैं इट इज स्टेइंग इन कैपिटल A itself. So how would I draw? I will draw a self loop. कि कैपिटल A पे अगर हम स्मॉल a दे रहे हैं so it is staying in A itself. Okay. Next, कैपिटल A पे अगर B दे रहे हैं so it is going to the Q1 closure state. Okay. So कैपिटल A पे अगर हम B दे रहे हैं it is going to Q1 closure state. Okay. Next, कैपिटल A पे C देने पे क्या हुआ? C देने पे वो B पे जा रहा है. देखो ये टोटल चीज जो है कैपिटल A पे C देने पे वो कहाँ गया? Q2 के क्लोजर में गया था, मतलब B में गया था. सो वही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि कैपिटल A पे अगर मैंने C दिया तो वो B पे जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम Q1 का इंडिविजुअली देख लेते हैं कि Q1 पे A देने पे या फिर Q1 पे C देने पे वो 5 इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो मतलब डेड स्टेट में जा रहा है. तो हम वही ड्रॉ करेंगे कि Q1 पे A या फिर C देने पे वो हमें लेके जा रहा है डेड स्टेट में. बट उसके पास B का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो Q1 पे अगर हम B दे रहे हैं सो वो मुझे कह रहा है कि इट विल स्टे इन Q1 इटसेल्फ. ओके. सो Q1 पे अगर हम B देते हैं सो इट इज स्टेइंग इन Q1 इटसेल्फ. ओके. नेक्स्ट, B का 3 इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि B पे A देने पे वो कहीं नहीं जा रहा है सो इट इज गोइंग टू द डेड स्टेट. सो B पे अगर हम A दे रहे हैं so it is going to the dead state.
बट बी पे अगर हम स्मॉल बी दे रहे हैं तो इट इज गोइंग टू Q1. सो बी पे अगर हम स्मॉल ए दे रहे हैं so it is going to Q1. ओके. सिमिलरली बी पे अगर सी दे रहे हैं सो वो Q1 Q2 मतलब बी पे ही रह रहा है. दिस इज इक्वल टू बी इटसेल्फ. Q1 और Q2 का मतलब ही ये है कि बी ही है. ठीक है. तो दिस विल क्रिएट अ सेल्फ लूप हियर. सो B1 बी पे अगर हम सी दे रहे हैं इट इज स्टेइंग इन बी इटसेल्फ. ओके. सो दिस इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग DFA सिस्टम. देखो यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि सक्सेसफुली आपने DFA कंप्लीट कर लिया, कि यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन पहली बात नहीं है. दूसरा है कि हर एक स्टेट से आपको तीन इनपुट सिंबल के लिए मैक्सिमम 3 आपको एज दिखेगा. मैक्सिमम आप देख सकते हो कि यहाँ पे Q0 से 3 एज निकला है. 1 इज फॉर ए एंड अनदर 2 फॉर बी और सी. इसलिए मैंने B, C लिख दिया है. ठीक है. ए स्टेट में देखो ए के लिए एज निकला है, बी के लिए एक एज निकला है, सी के लिए एक एज निकला है. ठीक है. Q1 स्टेट में देखो ए के लिए और सी के लिए 2 एज और एक बी के लिए. बी स्टेट में देखो ए के लिए एक एज, बी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, सॉरी यहाँ पे बी होगा, सॉरी बी स्टेट में बी देने पे किसी ने मुझे बताया नहीं, ये वाला गलती लिखे हम. दिस विल बी बी. दिस थिंग विल बी बी. कैपिटल बी पे अगर आप स्मॉल बी देते हो सो यू आर रीचिंग टू Q1 स्टेट. देखो कैपिटल बी पे अगर आप स्मॉल बी देते हो सो यू आर रीचिंग टू Q1 स्टेट. ओके. और कैपिटल बी पे अगर सी देते हो तो यू आर स्टेइंग इन बीट. Yes dear, I know, but if I will not complete it, no, so then again मुझे repeat करना पड़ेगा. Okay. Okay, So up to this point, my point is clear कि how to convert from a corresponding NFA to DFA. ठीक है. I know the time is over, but sometimes I may have to stretch because the same topic otherwise I will have to repeat. Okay ना? Okay, anybody is having any doubt, then you can ask me. Otherwise, I will take your attendance and will leave you. No question? Okay, I have taken your attendance, so you all can leave. Okay, you go through it. If anybody is having any doubt, then you can ask me, and maybe a day after tomorrow, I will take one MCQ test of all of you, all of yours, in TCSN. That I will inform in WhatsApp group. Okay. So I will inform that in WhatsApp group that in what time that test is being scheduled. That will be 25 marks question. I will inform you all. Okay. Okay, ma'am. Oh, okay. Okay, you all can leave. I have taken your attendance. Okay.
ma'am.